Hi everyone. So today I am going to start to make the eye, nose and lips. That is very important to learn. So before that we are going to start first only eye. Okay. So let's start and we will teach you everything by measuring each and everything, okay, properly. So you can use any HB pencil. HB pencil stands for hard and black both, right? So you can use HB pencil or you can draw by using the H pencil also. Or you can use the Natraj pencil as well, like this. But the point should be very much sharp. So here I'm using my extension of the pencil, okay. It's very important. If you are having a small pencil you can use this, okay. It's good. So let's start making one straight line. First, in the middle draw one straight line. It can be a 4 centimeter or 5 centimeter, okay. No need to measure it properly, just draw. And then one horizontal line, okay. So I'll just move my camera so that you can see from front. Yeah, this is the complete part of for making the circle. This straight line and this horizontal line should be equal, so you can use scale 6 centimeter by 6 centimeter. That means this point is 3 centimeter, okay. Now you need to make a one circular shape, okay. So you don't need to make circular shape over here. I can start from 4 centimeter. I'll keep it on 2. It is 2, 0 and 4. Again I will keep it 2, 0 and 4. Okay. Now I'll start making a perfect circle. It's very important to make a perfect circle. Okay. So this is your slice of pizza and I have eaten 3. Okay. It's left for you. Alright. So this is my circle which I am making. So I'll just rotate my file to make proper circle. So right now I'm using my Oxford A5 size file. You can use A4 size file or you can use normal sheets also, but try to use cartridge sheet. Make sure you are also rotating your file. So what I'll do, I'll just remove this paper from my file instead of using the whole file. I'll just take out my paper and use it properly because that is more convenient for me, okay.
Now don't be so much perfect, just try to do it, okay? Now I am going to make one more circle, but before that I am going to start my eye shape, okay? I'll zoom it a little bit more for you so that you can see properly. Now you just start from here. Observe me properly and then draw. Okay, don't be in a hurry, have patience while you draw. We are going to draw an eye shape. So we are not going to be in a hurry. I'll be using a regular eraser and using my HB pencil for drawing. Okay, this much you draw. Then start drawing like this, and then okay, this way you can draw. This is your inside muscle. Now I'm gonna draw one pupil here. Okay, this is my pupil and this is my circular part, but that is not going to be complete circular if my eye is visible at front. Okay, if my eyes is watching at front, so the upper portion of the circle will be not visible properly because of this line. Okay, now we have to draw it properly. Now you see this curve will come like this and this curve will come like this, so that means our eye is divided into three equal parts, 1, 2 and 3. Okay, now we will draw this shutter line. This line is called the shutter line. This is line which we call shutter line. Now I'm gonna draw one water line. Okay, and we are going to draw the eyebrow. Eyebrow can be different according to the person. Same is with eye. Okay, all right, so if we have drawn this much, then we can start drawing the whole drawing again. Eyelashes नीचे से ऐसे इस तरीके से आएंगे दोनों डायरेक्शन में, ऐसे okay. From here your nose starts. Okay, so you understood this part. After this is your skin area. Okay, if you have drawn this, you can pause this video here and then you can draw it. Now I will start drawing the whole process again, and this time I'm going to draw with the shading part. Okay,
यू कैन अगेन ड्रॉ इट, बिकॉज जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे. अगर आपने सिर्फ एक बार बना लिया और आपने सोच लिया कि मैंने बना लिया, मैंने सीख लिया, तो ऐसा नहीं होता है डियर. यू हैव टू लर्न प्रॉपरली एंड यू हैव टू गिव टाइम. ओके, आप कहीं से भी टाइम निकालो, आपको करना है. ओके, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद बहुत प्रैक्टिस की है. ओके, आफ्टर दिस यू विल स्टार्ट ड्राइंग द सेम प्रोसेस. पहले क्या था, हमें एक सर्कल बनाना था, राइट. तो मैंने यहाँ पर इसको 2 पे रखा था और यहाँ पर से मैंने इसको मार्किंग किया था 0 and 4, राइट. दोनों आपको ऐसे करना है, 0 and 4. ओके, मार्किंग करने के बाद यू विल स्टार्ट मेकिंग वन सर्कल. इसको रोटेट कर सकते हो आप. ओके, और लाइनिंग वर्क भी आपको प्रैक्टिस करनी है. अभी मैं बताऊंगी कैसे करना है. लाइन एंड सर्कल्स की प्रैक्टिस करनी है जिससे कि हैंड थोड़ा फ्लेक्सिबल हो. Now let's start making again by starting from here. धीमे धीमे स्टार्ट करना है स्टार्टिंग में. अगर स्टार्टिंग में एकदम से आप सोचोगे कि मुझे स्पीड अप करना है, तो ठीक है, आप कर सकते हो स्पीड अप भी, बट आपको ऑब्जर्व तो करना ही पड़ेगा, है ना. तो ट्राई नॉट टू हरी, ऑब्जर्व करना है अच्छे से. जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो फोकस करके बिल्कुल अपने ड्राइंग पे ध्यान देंगे, इधर उधर नहीं, ना ही अपना मोबाइल चेक करेंगे बार बार. नहीं तो आपका कंसंट्रेशन लूज हो सकता है एंड उसके बाद आप दोबारा ट्रैक पे नहीं आ पाओगे. ठीक है, तो बार बार अपने फ़ोन को चेक करना बंद करिए जब आप पेंटिंग या ड्राइंग कर रहे हैं. कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो कि इतना इम्पोर्टेंट हो कि हम जब आप काम कर रहे हैं तो आप अपना फोकस ना कर पाओ. ठीक है, आपको फोकस करना है तो आपका थोड़ा फ़ोन को हटाना पड़ेगा और अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा. आईब्रो पार्ट, आईब्रो में थोड़ा पास बना रही हूँ यहाँ पे ऐसे करके. ओके, यहाँ पर हमने पिछले आई में एक शाइन नहीं बनाई थी, वो मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड ऑन किया क्योंकि हम शेडिंग करने वाले हैं अब. ठीक है, तो उसके लिए हमें एक शेडो
और एक शाइन तो चाहिए, ठीक है। जहाँ पर हमारी आई शाइन होती है इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी लाइट जाती है, यानी कि यहाँ पे तो इसका अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लाइट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। और ये ऊपर वाला पार्ट डार्क होगा, नीचे वाला पार्ट लाइट होता है क्योंकि इसका शेडो यहाँ आएगा, ठीक है। नाउ आपको पता होगा कि आई लैशेस की वजह से ऊपर वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, थोड़ा डार्क होती है, ठीक है। और एक और अंदर की तरफ लाइन होती है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक और ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे लाइन। एंड अब मैं इसमें शेडिंग करना स्टार्ट करूँगी। अगर आप चाहो तो ये लाइंस को मिटा सकते हो, बट मैं नहीं इरेज करूँगी, ठीक है, सो दैट आपको रिमेंबर रहे सब कुछ अच्छे से। सो आई स्टार्ट डूइंग द शेडिंग पार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वी हैव टू ड्रॉ विद द डार्कर पेंसिल नाउ, ठीक है। जो भी हमें डार्क एरिया करना है वो हमें कर लेना है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो मिट जाएगा, है ना। जहाँ पे भी हमें डार्क करना है वो हम कर सकते हैं। नाउ आई एम यूजिंग माई 10B पेंसिल, ओके। आई एम यूजिंग माई 10B पेंसिल नाउ हियर। Be patient when you are starting the portrait, okay. This is a part of the portrait, so be patient, don't be in a hurry, just try to learn and draw perfectly. जितना एक्यूरेसी आएगी ड्राइंग में उतना अच्छा होगा, ठीक है। और एक्यूरेसी कैसे आएगी, इट विल कम बाय ओनली प्रैक्टिस एंड गाइडेंस। गाइडेंस के लिए आई एम हियर, प्रैक्टिस के लिए यू आर देयर, ओके, फॉर योर सेल्फ। So start doing the practice from today itself. If you have learned one eye, then start making 100 eye, okay, by your own, so that you can improve and draw properly. So नीचे वाली जो अंदर वाली लाइन होती है वो डार्क नहीं होती है, यहाँ थोड़ा सा हम डार्क कर सकते हैं, बस इतना, ठीक है। आईलैशेस के लिए आप एक लेयर दे सकते हैं पहले, एक ही डायरेक्शन में अपनी पेंसिल को चला रही हूँ ना, डायगोनल डायरेक्शन बोलते हैं इसको। ये मैंने बेस रेडी कर रही हूँ, ओके। नाउ आई हैव डन द बेस, ओके। नाउ आई विल स्टार्ट मेकिंग द हेयर। ऊपर से नीचे की तरफ मेरे को अच्छा लगता है शेडिंग करना, ठीक है। तो मैंने नीचे से स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा ऊपर से, मीन्स आईब्रो से स्टार्ट किया, सो दैट हमारा पेपर डर्टी ना हो। और अपने हैंड के नीचे यू कैन कीप अ टिश्यू पेपर। whenever you start your portrait, don't put any oil or cream on your hand, because वो अगर आप लगाओगे तो आपका जो ग्रेफाइट है वो यहाँ पर चिपक जाएगा, आपके हाथ में लग जाएगा, एंड देन यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू यूज़ एनी क्रीम विच इज़ क्वाइट ऑयली, ओके। नाउ आपको जूम इन करके मैं दिखाती हूँ कैसे कर रही हूँ। सी, कहीं कहीं से बीच में से पीछे का कलर शेड भी आ रहा है। अब मैं क्लास दे रही हूँ तो क्या मैं इस टाइम पे आपको अपना फ़ोन दूसरे वाला चेक कर रही हूँ, नहीं ना। I am giving the class, I am giving my 100%. I am trying to make you understand each and every concept properly, right? I am talking to you. So don't be in a situation where you can distract your mind while working, ठीक है। तो आर्ट को जितना आप सीरियसली लोगे उसके लिए अपना टाइम दोगे उतना वो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। एंड इट टुक मी अराउंड 15 years to be at this level, so it takes time, I know. It is a very hard sentence, but yes, it takes time to create your name, obviously, है ना। किसी भी फील्ड में हमें अगर माहिर होना है तो it takes time. And
अगर आपने सोचा है सीखने को तो उसको अच्छे से सीखना एटलीस्ट 1 ईयर के लिए, ठीक है। नाउ आई एम यूजिंग माई 6B पेंसिल, ठीक है। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि 6 ईयर्स से भी सीख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली एंड दे आर डूइंग वंडरफुल, ठीक है। दे हैव लर्नड एंड दे आर इम्प्रूविंग प्रॉपरली, राइट। सो दिस इज़ माई 6B एंड शार्प पेंसिल। आपको पहले चेक कर लेना है कि टूट तो नहीं, मतलब टूटने तो नहीं वाली, कभी कभी पेंसिल ब्रेक भी हो जाती है, ठीक है। तो आपका पूरा मैस अप हो जाता है कहीं कहीं पर ना, जहाँ पे आपको। तो यहाँ पर मैं शेडिंग करना स्टार्ट करूँगी पीछे की तरफ, मीन्स आई के बैक साइड में। तो यहाँ पर मैं 6B ही पेंसिल ले रही हूँ अपने हैंड में, बट उसको मैं लाइटली चला रही हूँ, ठीक है। तो मैं ग्रेड स्केल भी बनाना सिखाऊंगी आपको, कैसे बनता है ग्रेड स्केल। तो बहुत ही लाइट हैंड से आपको पेंसिल को होल्ड करना है, पहली बात, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट आउटलाइनिंग दिस सर्कल। पेपर और पेंसिल अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ कीजिएगा। आई एम यूजिंग आर्टलाइन पेंसिल एंड कार्ट्रिज शीट, ओके। नॉर्मल शीट के ऊपर डिफरेंट आता है इफेक्ट। कार्ट्रिज शीट किसी भी कंपनी की आप ले सकते हो। तो मैं कैसे अपने पेंसिल को चला रही हूँ, देखो आप डायरेक्शन उसकी, ठीक है। डायरेक्शन को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे लाइट लाइट चलाना है, क्योंकि नीचे वाला एरिया आ गया, यहाँ पे शेडो नहीं आ रही ना। अब जो भी आपका ओरिजिनल कलर होगा आएगा वो दिखेगा। फॉर एग्जांपल किसी की आई ब्राउन कलर की है तो ब्राउन कलर विजिबल होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। आप डिटेल पार्ट में कितना भी जाओ, बहुत डिटेल आप जा सकते हो, ठीक है। तो आप मिनिमलिस्टिक चीज़ में अपना पहले प्रैक्टिस करो, जितना मैं अभी करा रही हूँ उसमें प्रैक्टिस करो। हाई लेवल की भी होगी, एडवांस लेवल की भी होगी आई ड्राइंग, तो उसको भी हम करेंगे, बट यहाँ पे पहले इसमें मास्टर हो जाओ। ये आपका फ्रंट आई में करा रही हूँ, ठीक है। अभी हम करेंगे साइड व्यू। साइड व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमेशा आई सामने नहीं दिखती है ना, कभी कभी साइड में दिखती है, तो साइड व्यू भी हम करेंगे। अब ये जो हमारा अंदर वाला पोर्शन होता है वो हमेशा वाइट नहीं रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ की शेडो भी आ रही होगी ना। एक फॉर एग्जांपल आप समझिए एक बॉल है, ठीक है। बॉल के ऊपर मैंने इसको रख दिया। अब जहाँ पे मैंने इसको रख दिया है यहाँ पे और यहाँ पे एक शेडो आएगी बॉल के ऊपर, ठीक है। आप इसको बॉल समझिए, बॉल के ऊपर एक आई रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट बिल्कुल हमें करना है। तो आप इसके लिए 2B पेंसिल या फिर HB पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। बहुत 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 लाइट लाइट हैंड से करना है। देखो प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर का मतलब जैसे यहाँ मैंने पेंसिल रखी तो ये ऐसे एक प्रेशर हुआ, एक ये प्रेशर हुआ, एक ये प्रेशर हुआ, एक ये प्रेशर हुआ, एक ये प्रेशर हुआ, है ना। आपको यहाँ पे वर्क करना है, ऐसे ये वाला पोर्शन, ये चीज़ मैं कर रही हूँ यहाँ पे बहुत लाइटली, ठीक है। डार्क टू लाइट ले जाना है, ये डार्क है थोड़ा सा और फिर अंदर की तरफ लाइट। फिर से HB पेंसिल 6B पेंसिल मिलूंगी यहाँ के लिए ज़रा सा। 6B पेंसिल से मैं कर रही हूँ इसको यहाँ पे डार्क।
ओके, नाउ आईलैशेस बना सकते हो आप, और ये लाइन फिर से डार्क कर सकते हो। ज़ूम इन करके देखिए मैं कैसे यहाँ पे आईलैशेस बनाऊंगी। डायरेक्शन कैसी, इधर की तरफ, ठीक है, और इधर की तरफ के लिए ऐसे। ये ऊपर की तरफ और ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। सी में बहुत ज़्यादा आईलैशेस भी नहीं बनाना है, बहुत कम भी नहीं बनाना है, सो कीप इट बैलेंस्ड। डार्क टू लाइट, ऐसे थोड़ा डार्क से ऐसे निकालो अंदर से, ऐसे ऐसे। ओके, नाउ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम शेडिंग कर लेते हैं स्किन के लिए। नाउ अगर आपने स्टम्प खरीदा था, ठीक है, तो स्टम्प से आप कर सकते हो, अगर नहीं खरीदा तो आप ऐसे भी लीव कर सकते हो इसको। मटेरियल लिस्ट में सब कुछ है ना, स्टम्प भी है आपका, ईयरबड्स भी होंगे, कॉटन भी होगा, टिश्यू पेपर भी होगा, तो वो सब आपको खरीद सकते हो अगर खरीदना हो तो, नहीं तो आप इसको ऐसे लीव भी कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम ऐसे हाथ से मर्जिंग कर दूँगी मैं ज़्यादा। ज़्यादा बड़ा स्पेस हो गया तो मुझे बड़ा स्टम्प लेना है, ठीक है, तो आप बड़ा स्टम्प भी ले सकते हो। मैं स्किन बना दूंगी डायरेक्टली, इट बिकम्स easy by using the stump। Okay, now let's start using our HP pencil again, and we are going to make the side view eye. Again you have to draw the same thing, so I'll draw again one line that is going to be 6 centimeter, 0 to 6, okay, and I'll keep my scale on 3 and I'll just measure it. Where is 3? This is my 3. Keep it like this and draw a straight line up to 6. Okay, now I'm going to start making the eye that is watching side view. Okay, now you see that you have to make the circle again, so I'll keep it on 2. 2 will be here, if you can see properly. I'll keep it on 2 in the middle, 0, and this is my 4. Okay, and I'll try to make one circle, but I have to make this here also. Make a circle. This is the very easiest form which I am teaching you.
Now I'm going to start by making the circle. Now I'm going to make the straight line from here and from here also. Okay. Now this is my how much space? Is it 4 centimeter? Yeah. So I'll try to make. So I calculated properly. So it is 1.3. So this is my 1 and this is my 3. Okay. I'll keep it here now. 1, 0 to 1.3. Okay. So I have to remove the above one. Okay, and the down part. 1.3 is the exact measurement. This is for learning purpose. Okay, in every portrait obviously the size of the eye will be different and the size of the portrait will be different, right? So this is just for the measurement, for the learning purpose. Okay, now I'm going to start making the eye. So this is my front eye. Okay, for example this is my front eye, और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ उसको. ध्यान से करना है बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ध्यान से बना रही हूँ. अच्छे से ऑब्जर्व करना है. So this is my waterline and this is my shutter line. Okay, and this is my oval shape because the eye which is watching in the side obviously that will be having the oval, not circle. Okay, now in the side view hardly you can see the shine. Okay, very less time you see the shine because this is complete side view. Okay, now if you have done this much, then you can start doing the shading part. ये आपका यहाँ से ऐसे जाएगा ऊपर, ये आपकी आईब्रो, and this is going to be like this. Okay, now I'm going to darken these lines. जो भी आपको लगता है कि वहाँ पे डार्क होना चाहिए, मसल्स के अकॉर्डिंग होता है. ठीक है, जहाँ पे मसल्स टर्न होती है वहाँ पे वो डार्कनेस क्रिएट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे डार्कनेस है. तो आपने देखा मैंने यहाँ पे डार्क किया, यहाँ पे डार्क किया, उसको बीच में नहीं किया, बीच में इसको मैंने लाइट छोड़ा है. ठीक है, ना यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा से शेड कर लेंगे 6B पेंसिल से. Now we are going to start drawing this oval shape. Again I'm going to sharpen my pencil.
exactly I'm doing here. Now the eyelashes will be inside, है ना, ऊपर की तरफ नहीं दिखेगी ना, साइड व्यू में ऐसे दिखेगी. ओके, साइड व्यू के बाद आपका थोड़ा सा मैं नोज़ का बता देती हूँ. ऐसे करके अंदर जाता है, फिर सीधा होता है, एंड देन उसके बाद ऐसे. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी क्लोज्ड आई. तो क्लोज्ड आई के लिए दोबारा से मुझे पेपर लेना होगा, एक न्यू. लेट्स स्टार्ट मेकिंग द क्लोज्ड आई. ओके, क्लोज्ड आई इजी होती है बहुत और फटाफट से बन जाएगी. तो डोंट वरी कि मैं बहुत टफ सिखा रही हूँ. ठीक है, इट्स गोइंग टू बी इजी व्हेन यू विल प्रैक्टिस. लिटिल बिट थोड़ा सा साइड व्यू है आई का. ये लाइन को थोड़ा हम लाइट कर लेंगे. ये आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि कैसे बन रही है. ठीक है, डोंट वरी कि समझ नहीं आ रहा.
इससे जब आई क्लोज होती है, थोड़ी सी आँख खुली हुई जैसे बुद्धा की होती है ना, तो तब कैसा होता है व्यू। आई एम यूजिंग 6B पेंसिल नाउ। ड्रॉ करने के लिए अपना ओन पेंसिल का यूज़ करना, शेडिंग लाइट शेडिंग के लिए 2B पेंसिल का यूज़ करना। ओके, let's start making the eyelashes. अब यहाँ पे डार्कनेस, कहीं कहीं पे डार्कनेस होगी, कहीं कहीं पे डार्कनेस नहीं होगी। मुझको अलग से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी क्लास, तो आई हैड टू रिकॉर्ड दिस फॉर यू अगेन। अगर आप सभी उस टाइम पे होते क्लास में और आपने कर लिया होता तो मुझे रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ती दोबारा। सो ट्राई टू ज्वाइन द क्लास व्हेन इट इज। Now if you have the mono eraser you can use that, like I have this mono eraser. ओके, तो ये पॉइंटेड होती है आगे से इससे, तो मुझे जहाँ जहाँ पे लगता है इरेज करना है वहाँ पे मैं इरेज करूँगी। Okay, so this is my side, a little bit side eye which is closed. Now another eye which we are going to draw now. It's going to be freehand again. This is the eye which is watching a little bit upside. Okay.
When I used to do the shading now, sketching in my earlier days, I used to do it like continuously. I used to not stop. So I start in the morning and then I used to do for the whole day and sometime in the night also. इतना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है फॉर मेकिंग द परफेक्ट ड्राइंग, स्पेशली द शेडिंग पार्ट एंड स्केचिंग पार्ट एंड द ड्राइंग पार्ट. And double time it takes to create a painting. Okay. आजकल एक्चुअली पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है ना, उसकी वजह से हम लोग अपना 100% नहीं दे पाते हैं, तो वही चीज़ ध्यान रखनी है हमें. ये बेस दे रही हूँ मैं, ठीक है, बेस ऐसे. ओके. स्मूथ कर लिया मैंने ऐसे इसको, ठीक है. यहाँ पे मैं HP पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ. Okay, let's start making the circle, means the eyeball. Circle is very very important, इसको बहुत ध्यान से बनाना होता है. अभी कुछ कुछ ओवल जैसा लग रहा है ना. Start using your 6B pencil. Now start seeing how I'm doing the shading. Strokes I'm giving, okay? Darker strokes, and here it will be little bit lighter strokes, and again darker strokes.
यहाँ पे इस तरह से आई लैशेस। Start giving some shades in the skin also. Lightly I am moving my stem, not putting much pressure. See how I'm doing the shading. ओके, दिस इज़ द डार्कर पोर्शन एंड उसको मैं ऐसे कर में ले जा रही हूँ। बहुत ही पॉइंटेड पेंसिल से मैं कर रही हूँ, HB पेंसिल से। ठीक है, all right, so that's all. We have done this shading today. We have completed this much in this session. Apart from this, you will do the practice of making the eyes, different eyes. I'll give you the homework also, and you will make these kind of lines, straight lines, standing lines. You will practice some diagonal lines 100 times if you will practice this way, so your hands will be flexible from here. Okay, and start making the circles, small circles, big circles. You can make circles like this. Okay, ऐसे अपने हैंड को मूव करो पूरा। मैं अपने एंकल को, रिस्ट को, सॉरी एंकल को नहीं, रिस्ट को मैं पूरा मूव कर रही हूँ। क्या okay, so this practice you will do every day and start making the eyes at least 5 times a day. Okay, thank you.